So once again, good morning, students. Today we will discuss the blood pressure. So what is blood pressure? Pressure, already you are knowing that pressure is equal to force by area. So here in the human circulatory system, when blood flows through the blood vessels, then blood also exert force on the wall of blood vessels. That is called what is blood pressure. So what is blood pressure? Force exerted by Visuals of means force exerted by blood on the wall of blood vessel is called Miss, क्या है? please on That is your called video. huh? ब्लड प्रेशर क्या है बेटा? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड क्या है? ब्लड प्रेशर. ऑलरेडी यू आर नोइंग दैट द wall क्या बोलेंगे, इनर ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी इज मोर थिनर देन दैट ऑफ द भेन से. ठीक है. सपोज यू आर टेकिंग द इनर ल्यूमेन, देन इनर ल्यूमेन, the inner lumen of artery, wall of artery is thick. Suppose this is the wall, so it is the thick. It is suppose artery. And veins है thin walled. Wall is here thin, but this lumen is very wide here. This is vein beta. So when blood flows, then it exerts more pressure on the artery. Another thing, when the heart's pump, then blood comes out from the heart, that is in the artery. So that pressure is more in the artery than that of the vein. Okay, because vein is just collecting the blood and putting it into the heart. But in the artery, when heart pumps the blood, when the ventricles contract, then blood comes in the artery. So this blood pressure is more higher in the artery than that of the vein. So that's why the blood pressure in artery is more than that of the vein. Now blood is measured by an instrument. The name of instrument को क्या कहते हैं? Instrument is called a sphygmomanometer. Manometer. This manometer is the instrument which is used to measure the fluid pressure. Barometer is used to measure the air pressure. Okay. as और manometer जो क्या है, fluid का pressure नापते हैं. And spagmo का मतलब क्या हो जाता है? blood. So this is the instrument by which the क्या बोलते हैं, blood pressure is measured. Now blood pressure जो measured करते हैं उसका दो पार्ट है. नंबर 1 को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर. ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सो जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, दैट टाइम ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट इनटू द आर्टरी. ओके, सो दैट टाइम when the ventricles are in the contracted state, then that time force exerted by blood on the wall of artery is called क्या हो जाएगा? Systolic pressure. So क्या हो जाएगा? Systolic pressure. Force. मैं रिकॉर्डिंग लगता है बंद कर दिए. क्या हो गया बेटा? रिकॉर्डिंग बंद है मिस तब से. तब से बंद है? यस मिस. ठीक है, फिर से कर देते हैं. अरे एकदम ये क्या हो जाता है? कल भी हम वीडियो बनाए, अपलोड किए, सब डाटा खा गया और उसके बाद मेरा वीडियो बना के नहीं दिया. अब पब्लिक ही नहीं किया उसको, क्या पता उसको क्या हो गया. हाँ मिस, कल वाला भी लेक्चर था. लेक्चर था माने? मिस टीच मीट पे रिकॉर्डिंग में देखते हैं ना मिस, तो आ जाता है.
ठीक। अब तुम लोग चिल्लाना नहीं, बीच बीच में बोलते तो हम हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। So once again, good morning students. Today we will discuss blood pressure. What is blood pressure beta? Pressure already you are knowing that pressure क्या होता है? Force exerted by force per unit area. In 9th class you have studied force per unit area को क्या कहते हैं? Pressure. So here blood pressure का मतलब क्या हुआ? तो ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि जब ब्लड वेसल्स में बहता है, when blood flows in blood vessel, then it also exert force on the wall of blood vessels. Okay. So that pressure, that is called blood pressure. That may be sometimes high, sometimes low. So what is blood pressure? Now you come to know the definition of blood pressure. That is force exerted by blood on the wall of blood vessels is called blood pressure. Then how we will measure the blood pressure? Because correct blood pressure is very essential to maintain our good health. So to measuring the blood pressure, we have an instrument. The instrument is called क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर. ठीक है? मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा we are measuring the liquid pressure. We can measure the air pressure also. That is barometer. So barometer is instrument which is used to measure the एयर प्रेशर, बट मैनोमीटर जो है उसके द्वारा हम लोग किसका प्रेशर यूज नापते हैं? लिक्विड का, फ्लूइड का. एंड हियर स्फैग्मो का मतलब क्या होता है? ब्लड. सो द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड क्या? स्फैग्मोमैनोमीटर. अभी ब्लड प्रेशर का दो कंपोनेंट है. नंबर वन जो कंपोनेंट है वो बेटा क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर. तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या कहेंगे, किसको कहेंगे? तो यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा? डेफिनेशन यू शुड राइट, फोर्स exerted by blood on the wall of artery when ventricles contract. When ventricles are in contracted or systolic phase. Systolic phase. ठीक है? जब ventricles, when both ventricles contract beta, that at a time from the left ventricles oxygenated blood comes into the aorta and deoxygenated blood goes into the lungs by pulmonary artery. Okay, so that time the force will be the maximum force कितना exert करेगा? That is called क्या? Systolic pressure. And normal systolic pressure जो इसका वैल्यू है, normal systolic pressure का जो वैल्यू है दैट कितना है? 120 mm of Hg. 120 mm of Hg. 120 से ज्यादा है देन क्या कहलाएगा? हाई प्रेशर. और इससे नीचे है फिर क्या कहलाता है? लो प्रेशर. सो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो इतना है 120 mm of Hg. ओके, नाउ सी द सेकेंड फेज ऑफ द ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड क्या? डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर ये क्या है? What is this diastolic pressure? Their also definition is like that: force exerted by blood on the wall of artery when ventricles are in relaxed phase, relaxed or diastolic
फेस। ठीक है, व्हेन द बोथ वेंट्रिकल्स करेगा, रिलैक्स करेगा, दैट टाइम जो प्रेशर होगा इन द आर्टरी उसको क्या कहेंगे, वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। एंड इट्स नॉर्मल जो वैल्यू है बेटा वो क्या कहलाता है, 80 mm ऑफ Hg मरकरी। ठीक है, दैट्स व्हाई whenever the blood pressure we are going to measure the blood pressure, doctors are writing generally 120/80. it means 120 is क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 जो है वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अगर इसे प्रेशर ज्यादा है देन इट क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण एक डिजीज होगा, दैट इज कॉल्ड क्या है, हाइपर टेंशन। हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे डिजीज हो सकता है, इसमें 2 मेन डिजीज इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। नंबर 1 जो है वो बेटा क्या है, हाइपरटेंशन, एंड सेकंड जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग दैट इज कॉल्ड हेमरेज ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। कैपिलरीज का जो wall होता है, the wall of capillaries is only one, so when blood flow is more pressure, then the wall of the capillaries get rupture and that causes bleeding, and इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग, हैमरेज कहते हैं। जैसे ब्रेन का जो कैपिलरीज फट जाए, ब्रेन हैमरेज, कहीं का भी कैपिलरीज जो है वो फट सकता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, बिकॉज द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ कैपिलरी इज ओनली 1 cell. Okay, so here we have discussed the blood pressure. Now we will also discuss the artery, difference between the artery and vein. What are the 3 types of blood vessels, that is artery, vein we have completed. But today here we will discuss differences between the artery and the vein. Okay, so difference between artery and vein. वेरी इंपॉर्टेंट इजी टाइप क्वेश्चन में बोर्ड बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछता है। सो राइट डाउन, दिस साइड आई एम राइटिंग आर्टरी और इस साइड क्या लिख रहे हैं, वेन। सो व्हाट आर आर्टरी बेटा, सो मेनी डिफरेंसेस आर देयर, वेरी इजी क्वेश्चन है। आर्टरी आर द ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। और ये क्या होगा बेटा, उल्टा, ये है ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टू द हार्ट, ये हार्ट में खून लेके जाएगा। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ऑलवेज आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कैरी, ये क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, पल्मोनरी आर्टरी, पीए मतलब आर्टरी, दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और इसका सेकंड, इसका अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ये कैसा कैरी करेगा, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन सा, तो पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है तुम्हारा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। थर्ड डिफरेंस यू कैन राइट दैट आर्टरी डू नॉट हैव valve. Valve is preventing the backward flow of blood. So since when ventricles of the heart contract, so blood is going from the heart through the artery, so it do not need valve, but in the vein returning blood from the body is coming, so it need valve, otherwise blood will can remains there, it can go back. So यहाँ पर क्या डिफरेंस लिखेंगे बेटा, valve absent है और यहाँ valve क्या है, थर्ड डिफरेंस में क्या लिखे, valve जो है वो क्या होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, that prevent the backward flow of the blood. Number
डिफरेंस नंबर 4 आप लिख सकते हैं कि वॉल ऑफ आर्टरी जो होता है थिक होता है. सपोज दिस इज द वॉल. अभी आपको वॉल ऑफ आर्टरी, सपोज आई हैव गिवन ए पीस, 2 टुकड़ा, एक आर्टरी का और एक वेन का. देन आप देखेंगे वॉल ऑफ आर्टरी कितना, इसका वॉल जो है देख रहे कितना थिक है, और यहाँ पर इसमें देखेंगे इसका जो वॉल होगा वो क्या होगा, थिन होगा. इसका वॉल थिक है, इसका वॉल क्या है, थिन है. सो थिक वॉल्ड, ये क्या होता है, थिक वॉल्ड है बेटा. और ये क्या है इसके कंपैरिजन में, थिन वॉल्ड है, थिन वॉल्ड. ठीक है, यू कैन राइट वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक एंड यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल ऑफ वेन इज थिन. नाउ इस ल्यूमेन की बात करें तो ल्यूमेन जो होगा आर्टरी का क्या होता है, आर्क होता है, और इस ल्यूमेन होता है. तो नंबर 5 क्या लिखेंगे, हैव नैरो ल्यूमेन, हैव ल्यूमेन. सीधा जाओ, ल्यूमेन इसका नैरो है, इसका कंपैरिजन में क्या होगा, हैव वाइड न्यूरेन, हैव वाइड ल्यूमेन. ठीक है, अंदर का जो खाली जिसमें ब्लड जाएगा वो क्या होता है, हाँ वाइड होता है. नेक्स्ट डिफरेंस लिख सकते हैं, मिस आर्टरी. आर्टरी जो है जनरली कहाँ होता है, डीप सिचुएटेड होता है. यहाँ 6 नंबर, आर्टरी जो है वो क्या है, डीप सिचुएटेड है, और ये क्या है, सुपरफिशियल सिचुएटेड है. सब जो दिखता है ना यहाँ सब, ये सब जो है वो क्या है, वेन है. तो सुपरफिशियल सिचुएटेड. ठीक है. नेक्स्ट इज, आर्टरी में जो ब्लड बहता है बहुत ज्यादा, बिकॉज व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत तेजी से, जर्क एंड प्रेशर से ज्यादा होगा. तो इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लोज विथ मोर जर्क एंड प्रेशर. blood flow with more jerk and pressure, दोनों ही ज्यादा होगा बेटा. यहाँ पर क्या होगा, लेस जर्क एंड प्रेशर, लेस जर्क. क्या लिखी है, blood flows with more jerk, deep situated, deep artery is deep situated here. जो जितना भी आपको दिख रहा है सब बॉडी में, मम्मी का भी देखिएगा, दादी का, दिस ऑल्सो आर वेन्स बेटा. वेन्स आर सुपरफिशियल, स्किन के ऊपर से यहाँ पर सिचुएटेड है, बट इन कंपैरिजन टू दिस आर्टरी, वेन्स आर सुपरफिशियल सिचुएटेड, एंड ये जो आर्टरी जो है वो डीप सिचुएटेड है. ओनली सम प्लेसेस वी कैन सी द फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन द आर्टरी, लाइक हियर पल्स, देयर इज अ आर्टरी. So it is here blood flows with more jerk and pressure, because when the ventricles contact, then blood is pushing going there. So here pressure is high, and यहाँ जो return वाला blood आ रहा है, इसलिए blood flows with less jerk and pressure. यहाँ जो pressure भी कम है. और next is number 8. अगर आप किसी को भी डेथ हो जाता है, देन ये जो काम करना बंद होगा, वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करेगा. तो आफ्टर डेथ आर्टरी में खून होता ही नहीं है. सो आफ्टर डेथ, आफ्टर जो डेथ होगा, नो ब्लड इन आर्टरी, नो ब्लड, बट इसमें आफ्टर डेथ जो होगा ब्लड भरा रहता है. सो ब्लड प्रेजेंट रहेगा. So these are the differences between the artery and vein, and it is very important in easy type question board many times have asked. Write 4 differences, write 5 differences, write 6 differences. Any 5 or 6 differences you can write. Okay, but you write all correct differences. Now, next point today we will discuss is the clotting of blood. Blood clotting. Blood clotting. All of you have experience. Suppose when you fall down or any cut, then कभी भी कट हो गया, गिर गए, छिल गया, then क्या होता है, blood start to flow from our body.
अगर बेटा इसी तरह से ब्लड बहते जाएगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा देन प्रेशर ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, जब आपका घर का टंकी फुल होता है, एकदम फुल टैंक है पानी का, देन आप नीचे कहीं पर भी पानी खोलते हैं, देन पानी ज्यादा प्रेशर से आता है। लेकिन जैसे ही पानी हाफ हो गया या 1/4 हो गया, देन आप देखते होंगे कि प्रेशर जो है नल में कम हो जाता है। तो उसी तरह से ये तो एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स इन द सराउंडिंग एंड ड्यू टू अनफेवरेबल या किसी कारण से हम बॉडी इंज्योर होगा ही, और इंजुरी के समय ब्लड बाहर निकलेगा, और बाहर निकलते से निकलते अमाउंट ऑफ ब्लड इन द बॉडी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड कम होगा देन एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग ऑफ आवर हार्ट विल बी आल्सो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका एफिशिएंसी ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, कभी भी छीलते हैं गिरते हैं तो ब्लड का पंपिंग का जो एफिशिएंसी है दैट डू नॉट डिक्रीज। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दैट टाइम clotting of blood takes place and this plug there so that blood cannot flow there. So after 3, 5, 6, 7 minutes only our blood get stopped there from the cut area. So how do this blood clotting takes place? See, for the blood clotting, along with the blood, in the blood, the third corpus present होता है blood platelets. तो blood platelets. This blood platelets is also flowing, always the blood. This number of platelets is fixed in our body, approximately 2 lakhs to 4 lakhs per ml of blood होना चाहिए, ठीक है। तो ये ब्लड प्लेटलेट्स जहां भी इंजर्ड हुआ तो इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करता है बेटा? सी, इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज करेगा? इंजर्ड टिश्यू रिलीज करेगी क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंजर्ड टिश्यू, जब आप चोट लगा गिरे तो जो आपका जो टिश्यू जो डैमेज हुआ वो इंजर्ड टिश्यू क्या रिलीज किया है? केमिकल दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? इस ब्लड में दैट इज उस प्रोटीन नहीं, एक एंजाइम प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो प्रेजेंट है बेटा, प्रो का मतलब इनएक्टिव हुआ, इसको प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव जो प्रोथ्रोम्बिन है एक इसके नीचे लिख दीजिए इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, इसको क्या बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल दिया, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन क्या है? एक्टिव है। अब एक थ्रोम्बिन क्या करेगा? ब्लड में एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ द ब्लड का नाम बताइए तो क्या बेटा? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनो एक सॉल्युबल प्रोटीन है। व्हाट इज दिस? सॉल्युबल प्रोटीन। तो एक फाइब्रिनोजेन को कौन? थ्रोम्बिन क्या में बदल देगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या में बदल दिया? फाइब्रिन में। और फाइब्रिन जो है इस तरह से नेटवर्क ऑफ मेस बना के जाल बन गया, इस तरह से जाल बन गया, और इस जाल में क्या हो जाता है? और ब्लड सेल्स क्या हो जाता है? इंटैंगल्ड, अटक गया, बहना क्या हो गया? बंद हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन आवर बॉडी। वन इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहते हैं आप बेटा कि आफ्टर द ब्लड क्लॉटिंग ऑल्सो सम पानी जैसा बाहर निकलते रहता है। जहां भी चोट लगा वहां से ब्लड क्लॉटिंग हो गया, लेकिन पानी जैसा पंछा बहते रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीरम। तो सीरम और प्लाज्मा क्या एक ही है? नो, सीरम और प्लाज्मा में अंतर है। तो वो क्या अंतर है उसको देखिए। प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा में से क्या निकल गया? क्या यूज हो गया है? यहाँ प्लाज्मा में से क्या यूज हो गया है? प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन क्या बनेगा? बराबर क्या होगा? सीरम बराबर क्या होगा? सीरम, या सीरम यहां भी लिख सकते हैं।
सीरम बराबर क्या हो गया, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन निकल जाएगा क्योंकि दैट इज यूज्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। दैट जो लिक्विड पार्ट जो निकल रहा था उसको क्या कहते हैं, सीरम। सो सीरम में प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन हटने के बाद जो लिक्विड आता है उसका दूसरा नाम क्या दिया गया, सीरम। ओके, नाउ वी आल्सो हैव टू स्टडी द लिम्फ। लिम्फ क्या है और उसका फंक्शन क्या है, that is also given in your NCERT book. So topic it is lymph क्या है, lymph क्या है, lymph क्या है बेटा, lymph is another fluid connective tissue। ये भी क्या है, another, जिस तरह से blood connective tissue था, this is also another fluid connective tissue। अनदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसको दूसरा नाम लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसका दूसरा नाम क्या कहा गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा गया, बिकॉज मान लीजिए कि बड़ा सा क्या था, आर्टरी था, ये ब्रांच हुआ। ठीक है, ये ब्रांच होकर के मान लीजिए कि 3 ब्रांचिंग किया, एक इधर खून जा रहा है, ये फिर ब्रांचिंग करेगा बेटा, और इस तरह से लास्ट में ये ब्रांच करते करते क्या बनाता है, ये बनाएगा कैपिलरी। ठीक है, तो ये वॉल ऑफ कैपिलरी और ये सारे कैपिलरी जुड़ के क्या बना लेगा, फिर वेन बनाएगा। तो यहाँ पर यही कैपिलरीज है। तो वॉल, इसका कैपिलरीज का वॉल का थिकनेस क्या होता है, ओनली 1 सेल होता है। तो व्हेन ब्लड जब पास करता है इस कैपिलरी से, तो लिक्विड जो पार्ट है ब्लड का, वो कुछ भाग इससे एस्केप, इसका वॉल का थिकनेस 1 सेल है, इसलिए कुछ जो लिक्विड है इसका एस्केप करके बाहर आ जाता है यहाँ से भी। और ये सभी जगह में क्या होता है, सेल्स होता है, टिश्यू होता है। तो इसे जो लिक्विड बाहर स्केप आउट करके आ गया, और चूंकि इसका फॉर्मेशन टिश्यू के बीच में ही हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज एंड देन लिक्विड पार्ट ऑफ द blood comes out into the intracellular space, because the wall of the thickness of the wall of blood capillary is only 1 cell, so it is called क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और एक फ्लूइड के कारण ये सेल्स वगैरह जो है ये क्या रहता है, मॉइस्ट रहता है। बट दिस जो लिम्फ बाहर निकल गया, ये लिम्फ फिर कलेक्ट होकर के, और ये क्या हमें आ जाएगा, ये लिम्फ कलेक्ट होगा, एक लिम्फेटिक वेसल्स बनाएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज बनाएगा पहले, फिर लिम्फ वेसल बनाएगा, एंड दैट लिम्फ वेसल अगेन ये जो है, ये जो लिक्विड जो लिम्फ लेके आ रहा है उसको फिर कहाँ पोर कर देगा, हार्ट में। समझे, या हार्ट से, मान लीजिए कि यहाँ हार्ट से निकल के गया था खून, इसे जब वेंट्रिकल से, ठीक है, यहाँ से जब खून, ये वेंट्रिकल्स था, तो वेंट्रिकल से जब खून इसमें गया था, तो इसका लिक्विड पार्ट जो कैपिलरीज में जब ब्लड गया, तो लिक्विड पार्ट कुछ स्केप करके आ गया बेटा, उसको क्या कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। देन अगर यहाँ हमेशा पानी जमा होते जाएगा तो ओडीमा हो जाएगा ना, गिल्टी वगैरह इस तरह से पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ये लिम्फ जो है ये फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरी जुड़ करके लिम्फेटिक कैपिलरीज में आएगा, लिम्फेटिक कैपिलरीज बड़ा वेसल्स बनाएगा, बड़ा लिम्फ वेसल बनाएगा, और बड़ा लिम्फ वेसल बनाएगा, और लास्ट में ये भी क्या करता है, वेना कैवा के साथ में यहाँ भी आ जाता है। नहीं तो ब्लड का में पानी का मात्रा कम हो जाएगा, इस तरह से ब्लड का जो पानी जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, सो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक और क्वेश्चन देता है बोर्ड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड लिम्फ। क्या दोनों में डिफरेंसेस है, बिल्कुल डिफरेंस है बेटा। यहाँ लिखे लिम्फ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिख लेते हैं, प्लाज्मा। तो लिम्फ जो है कैसा, इसका पहले कलर पर डिपेंड है। कलर जो है ये क्या है, कलरलेस है, और इसका कलर क्या है, दिस इज स्ट्रॉ कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर होता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है, लिम्फ में प्रोटीन का मात्रा कम रहता है, क्योंकि इसमें से स्केप होकर के बाहर छन करके निकलता है, इसलिए बड़ा बड़ा प्रोटीन छनने नहीं पाता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, लेस प्रोटीन है, लेस प्रोटीन। इसमें प्रोटीन जो है वो क्या है, मोर प्रोटीन होता है। So this is the two differences between the lymph and plasma. Colorless, plasma is a straw color, वाल का जो रंग होता है वो है, और lymph contain less protein, but plasma में है प्रोटीन का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है,
अभी हम लोग साथ ही साथ क्या कर लेते हैं, लिम्फ का फंक्शन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सो व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिम्फ? फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। नंबर वन, लिम्फ कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट जो है हमारे बॉडी को क्या चीज से, बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। सो लिम्फ कंटेन, पहला लिम्फ क्या फंक्शन होगा, सिंस लिम्फ कंटेन large number of lymphocyte, large number of lymphocyte होता है बेटा। सो इसके पास जब बहुत ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट होता है, सो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है। सो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। और सेकेंड फंक्शन क्या लिखेंगे, ये जो इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड जो है वो ब्लड लेके गया, बट डाइजेस्टेड फैट्स इज कैरिड बाय द लिम्फ। सो इट कैरी क्या करेगा, डाइजेस्टेड, कैरी डाइजेस्टेड फैट्स, ठीक है। डाइजेस्टेड फैट्स को, फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है इसको यही कैरी करके लेके जाता है। एंड थर्ड जो है, ये टिश्यू को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, मेक द टिश्यू moist. So these are the various functions of the lymph. Okay, so today we have discussed क्या, blood pressure के differences between artery and vein, blood clotting and lymph. Tomorrow we will discuss the transportation in plants. Okay, go bye. थैंक यू मिस। मिस चले गए? हाँ, क्लास ओवर हो गया। ओके बाय। क्या क्या बोल रही है श्वेता? कुछ भी नहीं रे, क्लास ओवर हो गया, अब दूसरा क्लास अटेंड करो। बाय। हेलो, 51 रोल नंबर किसका है? कौन गेम है? कौन गेम? अच्छा, हो गया खत्म। जब लो हम ईयरफोन में एक चलते हैं। हेलो, हाँ
रियांश कौन है रियांश? बोल रहे यस हेलो ऋषिकेश। इको लीव करो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। कस्टम खेला में अरे फीस जमा करवाए करवाई शनिचर के हाँ शनिचर के शनिचर के कस्टम खेला में ना कितना लग तो तब बताइए था हमरा। हम 2 महीना के कर दिलु अप्रैल मई के जून के खाली करला हूं अप्रैल मई के कितना लगलो? लगाओ 4400 लिखो इतनी टर्म में फिया लेवी थोई बा और भेजिए ना हमरा में स्लिपा। अच्छा बाद में दो कस्टमर में निकला ना कस्टम हां ना हो हम खेल दिल वही दो साला भाट लगा है दूगो ना ऐसे मिली ऑनलाइन रे हो एगो गिल्ड से एगो फ्री में फीस जमा कर दो। कितना चल ठीक है है? ठीक।
ए विशाल, शिव, ए शिव, अरे हम लोग का एब्सेंट दिखा रहा है, मेरा तो दिखा ही नहीं रहा है, ऋषिकेश वो के एब्सेंट दिखा रहा है। कभी कभी वैसे हो जाता है, एक दिन मेरा भी नहीं दिखा रहा था। साला मेरा तो नाम ही नहीं दिखा रहा है, ऋषिकेशवा के एब्सेंट दिखा रहा है। शिवो तुम लोग अपना देखो ना। अभी उठा था? हाँ यार, अभी जस्ट। अभी क्या चीज करेगा? वही FF। देवा है। कुछ पागल है डॉन के तुम नहीं मिला है ना दोस्त लोग ये फ्रेंड्स लोग का अपना देखा? रहा है। अच्छा चल, आज मिस के आएंगे तो पूछेंगे। फिल्टर। चलो वो भी कॉपी कंप्लीट करो बैठ के। अच्छा हाँ मिस चल। फोटो भेजी थी? हम तो खोलवा ना कर ली ग्रुप आ रहे। मिस फोटो भेजी थी?